اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل۔ پورنوگرافی عصر حاضر کا ایک بہت بڑا ناسور ہے۔ یہ وہ زہر ہے جس کا کوئی تریاق دریافت نہ ہو سکا۔ لوگوں کے رویے اور انداز زندگی اس کی بدولت جنسی خود غرضی کی بھینٹ چڑھے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ آخر یہ کھیل کب شروع ہوا، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس کے وجود کے بنیادی محرکات کیا تھے، آج کی تاریخ میں اس میں کیسی جدتیں لائی جا رہی ہیں۔ قارئین حضرات، تاریخ میں سب سے پہلے پورنوگرافی بطور ہتھیار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہوئی۔ اسے بطور ہتھیار سب سے پہلے صلیبی بادشاہوں نے استعمال کیا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ صلیبی ہر میدان جنگ میں مسلمان نوجوانوں کے ہاتھوں شکست فاش سے سخت پریشان تھے۔ اسلامی افواج صلیبی جمعیت اور متحدہ قوتوں پر بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ صلیبوں کی فوج کا دھارا اس وقت بدلا جب 1.5 لاکھ مسلمان فوج نے بحر اوقیانوس کے ساحل پر 15 لاکھ صلیبی جنگجوؤں کی لاشوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اس موقع پر متحدہ صلیبی فوج کا بادشاہ رونالڈ پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ آخر ایک بڑی میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ اس میٹنگ میں مسلم اور صلیبی افواج کا موازنہ کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ مسلمان رات بھر سجدوں میں روتے ہیں اور دن بھر میدانوں کے للکار ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ایک دنیا آباد ہے جسے وہ ایمان کہتے ہیں۔ یہی ایمان انہیں دنیا کے ہر خوف اور ڈر اور لذت پرستی سے بہت اوپر انہیں بہترین جنگجو بنائے رکھتا ہے۔ جبکہ صلیبی فوج رات بھر زنا کے محفلوں اور دنیا کے رنگ رنگیوں میں مشغول رہتے ہیں، لہذا دنیا چھوڑ کر ایک نئے جہان کا خوف انہیں شکست فاش سے دوچار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوران جنگ مسلمان فوجوں کی آنکھوں سے جو وحشت ٹپکتی ہے وہ صلیبی قوتوں پر خوف طاری کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ نعرہ تکبیر کی فلک شگاف صدائیں اور مسلمانوں کا اپنی اپنی جگہ پر فولاد بن جانا بھی صلیبوں کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ صلیبوں کی اس تاریخی میٹنگ میں ہرمن نامی انٹیلیجنس آفیسر بھی موجود تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے صلیبی تاریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہ نہایت شاطر اور ذہین شخص تھا۔ اس نے مسلمانوں اور صلیبی نوجوانوں کی نفسیات پر بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ میری 60 سالہ زندگی کا تجربہ ہے کہ ایک عیاش پسند وجود کبھی بھی زندگی کے میدان میں بہترین سپاہی نہیں بن سکتا، خصوصاً وہ لوگ جو سیکس کے معاملات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کے جسمانی اور روحانی طاقتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اگر میں مسلم فوج کی بات کروں تو مسلم فوج میں ایسے نوجوانوں کی اکثریت ہے جو سیکس کی لذت سے نہ آشنا ہیں۔ ان میں سے جو شادی شدہ بھی ہیں وہ بھی اس چیز کو ایک حد تک آزما پاتے ہیں۔ تصور کے رعنائیاں اور خوبصورت نظارے ہمیشہ ان کی پہنچ سے دور رہے ہیں۔ انہیں مذہب سے آگے اور پیچھے کچھ نہیں دکھائی دیتا، لہذا اگر ہم ان میں جنسی بھوک کو پیدا کر دیں تو ان کی سوچ اور نظریات کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اس مشن کی کامیابی ایک مثال وہ مسلمان بادشاہ اور وزراء بھی ہیں جو شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے، لیکن ہماری خوبصورت لڑکیوں نے جب سے انہیں اپنی حسین اداؤں کا اسیر کیا تب سے وہ خدا اور رسول کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ انہیں سلطان ایوبی اپنا سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے۔ ان مسلمان وظیفہ خوروں میں سے وہ جنرل بھی شامل ہیں جن کی حکمتی عملیاں اور بہادریاں میدانوں کے نقشے بدل کر رکھ دیتی تھیں۔ آج وہ صلیبوں سے نگاہیں جھکا کر بات کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کے اندر عورت اور جنسیات کی روح داخل کر چکے ہیں۔ اگر یہی تجربہ پوری مسلمان فوج پر آزمایا جائے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ مسلمان نوجوانوں کے لیے یہ ایک بالکل الگ نئی چیز ہوگی اور وہ اس کے لیے جنونی ہو سکتے ہیں۔ ہرمن کے اس خیال پر رونالڈ نے نکتہ اٹھایا۔ اس نے کہا کہ ہم متعدد بار نہایت خوبصورت لڑکیاں مسلمان فوج میں داخل کر چکے ہیں۔ اس کام میں ہمیں شدید تخریب کاری کرنا پڑی تھی، لیکن مسلمان فوج ان حسین لڑکیوں کی طرف دیکھنے کا تکلف ہی نہیں کرتی تھی، اور متعدد لڑکیاں مسلم فوج کا کردار دیکھ کر صلیبی حمایت چھوڑ چکی تھیں، لہذا تمہارا یہ منصوبہ ناکام ہے۔ ہرمن نے فوری جواز پیش کرتے ہوئے کہا تھا، حضور، جب تک آپ کے اندر کسی چیز کا تصور موجود نہ ہو اس کا ہونا یا نہ ہونا بے معنی ہوتا ہے۔ ہمیں مسلم فوج میں جنسی دنیا کا تصور پیدا کرنا ہے۔
ऐसा तस्वर जो उनकी सोच के राहदारों में बुढ़ोना औरतों को हसीन अदाओं के साथ गर्दिश करता दिखाए। इसके बाद वो खुद को हमारी सकाफत के हवाले कर देंगे, क्योंकि ये हमारी ईजाद होगी। यही वो वाहिद तरीका है जिससे हम मुसलमान फौज को शिकस्त दे सकते हैं। रोनाल्ड हरमन की इस बात पर बहुत संजीदा हो गया और सरगोशी भरे लहजे में बोला, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हरमन ने निहायत शातराना अंदाज में तारीख का सबसे भयानक मंसूबा रोनाल्ड के सामने पेश कर दिया। दुनिया के सामने यह मंसूबा आर्ट पोर्नोग्राफी के नाम से सामने आया। इस मंसूबे के 1 साल बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को इत्तला मिली कि फौज के कुछ नौजवान रात को गायब पाए जाते हैं। नौजवानों में अक्सर जिनसी गुफ्तगू भी सुनने को मिली है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस चीज को इतना संजीदगी से लिया कि खुद भेस बदल कर उन नौजवानों का पीछा किया। यहां एक बात वाज़ेह करता चलूं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बज़ाते खुद भेस और आवाज बदलने के माहिर थे। कुछ नौजवानों की पुरस्रार हरकतों पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खुद उनके पीछे गए तो मालूम हुआ कि फौजी क़यामगाह से कुछ फासले पर एक काफिला रुका है जो बज़ाहिर मुसलमान हैं, लेकिन उनके पास फाहिश तस्वीर के कुछ नमूने मौजूद हैं। जब सुल्तान ने वो तस्वीर देखी तो दंग रह गए। इनमें ऐसी मंजर कशी की गई थी कि कोई भी नौजवान सेक्स के लिए जुनूनी हो सकता था। इसी दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को दमिश्क और मिस्र के दीगर शहरों से इतलात मिली कि शहर में फाहिश तस्वीर के कबा खाने खुल गए हैं, जहां जिनसी इश्तिहाल अंगेज तस्वीर दिखाई जाती हैं। नौजवानों को जिनसियात की बाकायदा तालीम दी जाती है। साथ यह भी लिखा था कि मुसलमान नौजवान बड़ी तेजी से बुराई की तरफ माइल हो रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फौरन अपनी जंगी पेशकदमी रोकी और पोर्नोग्राफी के इस नासूर के खिलाफ महाज खोला। इस हवाले से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तारीखी तकरीर में कहा था कि हर कौम की ताकत उसका अच्छा या बुरा किरदार होता है। दुश्मन हमारी असल ताकत का अंदाजा लगा चुका है, अब वो सामने की जंग कभी नहीं करेगा। इसलिए दुश्मन हमारे कौमी किरदार पर हमला आवर हुआ है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जंग मैदानों में हो, जंग सोच और रवैयों की भी होती है। जो कौम इस पर गालिब आ जाती है वो फतह याब होती है। मेरे मोअज़्ज़ज़ क़ारीन हज़रात, सलीब इंटेलिजेंस ऑफिसर हरमन एक नहायत ज़हीन और शातिर इंसान था। अगर आप पूरी सलीबी तारीख का मुताला करें तो आपको यह शख्स पूरी सलीबी तारीख में छाया हुआ नजर आएगा। सलीबी जब हिम्मत हार चुके थे तो इस शख्स ने उनमें जान डाल दी। इसके मंसूबे पर अमल करते हुए दुनिया के मशहूर मुसव्वर और मंजर निगारों को मुंह मांगी कीमत पर खरीदा गया। उनसे ऐसी फाहिश तस्वीर कशी करवाई गई कि देखकर नजर हटाना मुश्किल हो जाता था। वो सेक्स जिस पर लोग एक हद तक तवज्जो देते थे, फिर इससे बेहद सोचने लगे। सलीबी बादशाहों ने जब अपने इस मंसूबे को 100% कामयाब होते हुए देखा तो अपनी किताबों में इसका तज़किरा बड़ी शान से किया। अगरचे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस जहर को मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस मसले का पूरी तरह इदराक ना हो सका, क्योंकि इस जहर के असर को देखते हुए हसन बिन सबाग के फिरके ने इसे बतौर हथियार अपनाया। सलीबों से इस आर्टग्राफी की नई जिद्दतों पर मांग की। यूं हसन बिन सबाग की पहाड़ों में बनाई हुई पुरस्रार जन्नत में एक और हथियार का इजाफा हुआ और इसी दौरान सुल्तान बैतुल मुकद्दस की फतह के बाद चल बसे। सलीबी अपना दम खो चुके थे, लेकिन उनका तैयार करदा हथियार पोर्नोग्राफी मुसलसल फाशी के जरासीम फैलाता रहा। यूं सदियां बीत गईं, जमाने के रंग ढंग बदल गए और कई सकाफतें आई और मिट गई। आखिर 18वीं सदी का सूरज तुलू हुआ। ये वो सदी है जब साइंस के इल्म में इनकलाब की फिजा पैदा होना शुरू हुई थी। नई जिद्दतें और नई मंजिलें रोशन हो रही थीं। 18वीं सदी के शुरू में पोर्नोग्राफी पर एक बार फिर नए अंदाज में काम शुरू हुआ। इस बार पोर्नोग्राफी के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा दरख्तों को भी काट छान कर जिनसी उज़्व की तरह बना दिया गया। फ्रांस में हुए इस तमाशे पर लोगों का हुजूम लग गया। लोग बेपनाह दिलचस्पी से लकड़ी के बने जिनसी सामान और दरख्तों पर हुई ज्यादती देखने जोक दर जोक आ रहे थे। इस वुड पोर्नोग्राफी पर लोगों में जिनसी आजाद ख्याली पैदा हुई। लिहाजा लोगों की दिलचस्पी देखते हुए अमेरिका, फ्रांस और लंदन में वुड पोर्नोग्राफी के छोटे छोटे पोर्न हाउस खुल गए, जो एक छोटा सा जंगल होता था जिसमें पोर्नोग्राफी के फन पारे दरख्तों पर आया होते थे। प्यारे दोस्तों, 1839 में कैमरा इजाद हुआ।
इस इजाद ने जहां साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा जादू किया, वहीं ये बहुत जल्द पोर्नोग्राफी का अहम हथियार बन गया। 1855 में पहली बार इसे पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस पोर्नोग्राफी में मसला यह था कि कैमरा तस्वीर की सिर्फ एक कॉपी बनाता था। इस तस्वीर को बहुत ज्यादा शेयर नहीं किया जा सकता था, इसलिए पोर्नोग्राफी का जिन मुश्किल का शिकार हो गया। लेकिन यह मसला उस वक्त मसला बिल्कुल भी ना रहा जब 1863 में प्रिंटर इजाद हुआ। इस इजाद के साथ ही सेक्स तस्वीर से भरपूर प्ले कार्ड्स और जिनसी खाके लोगों के हाथ में आ चुके थे। 1871 में जिनसी तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट रिजल्ट में पूरी शिद्दत के साथ मार्केट में आ चुकी थी। इन मार्केटों में फ्रांस की मार्केट सबसे आगे रही। दोस्तों, 1876 में वीडियो कैमरा टेक्नोलॉजी मंजर आम पर आई। इस टेक्नोलॉजी में वीडियो कैमरा 1 मिनट में 60 तस्वीर को कैप्चर करता था। फिर इन तस्वीर को चरखानुमा मशीन पर एक बड़े रोल बंडल की सूरत चढ़ाया जाता, फिर इस चरखे को हाथ से चलाया जाता। इससे तस्वीर इतनी तेजी से घूमती थी कि मानो ऐसा लगता था जैसे वीडियो प्ले हो रही है। इसी तरीके अमल को आगे चलकर टीवी और वीडियोस के लिए इस्तेमाल किया गया। आज जो हम हरकत करती और जिंदा वीडियोस देखते हैं, दरअसल ये हजारों तस्वीर का मजमुआ होती हैं, जो इस तेजी और सफाई से प्ले होती हैं कि हमें तस्वीर हरकत करते नजर आती है। दोस्तों, वीडियो टेक्नोलॉजी के वजूद में आते ही यूरोपीय ममालिक में फिल्म साज इंडस्ट्री का इब्तदाई ढांचा बनना शुरू हुआ। इसके साथ ही तारीख में पहली बार बाकायदा पोर्न इंडस्ट्री का आगाज हुआ। पहली पोर्न फिल्म 1895 में रिलीज हुई। इसे लूमियर ब्रदर्स इंडस्ट्री ने पहली बार अवामी नुमाइश के लिए पेश किया। इसके डायरेक्टर मिस्टर अल्बर्ट थे। पहली पोर्न फिल्म 16 मिनट की थी, जिसमें एक औरत को बुरहाना अंदाज में होश रहा अदाएं दिखाते हुए पेश किया गया। यह फिल्म निहायत मुनाफा बख्श रिकॉर्ड के साथ मकबूल हुई। उसके साथ ही सेक्स की ख्वाहिश जरूरत से बढ़कर जुनून में बदल गई। यूरोप के गली कूचों में लोग बेहुदा मजाक और छेड़खानी करने लगे। फिर यही चीज आगे चलकर यूरोपीय सकाफत का हिस्सा बन गई। 19वीं सदी के आगाज में कैमरा टेक्नोलॉजी में मजीद बेहतरी आई। मंजर पहले से ज्यादा साफ और मयारी रिकॉर्ड होने लगे। उसके साथ ही फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक ने सरकारी सतह पर पोर्न थिएटर खोल दिए, जहां पोर्न अदाकारों की पैदावार का सिलसिला शुरू हुआ। 1920 में यूरोपीय तहजीब पोर्नोग्राफी के जहर में डूब चुकी थी। अवाम सरेआम सड़कों को बेडरूम बनाए और अपना शौक पूरा करने लगे। साहिल समुंदर अयाशी के अड्डे बन गए। मियाँ बीवी एक दूसरे की जिम्मेदारियों से भागने लगे। फिर 1970 में पोर्नोग्राफी का जहर बरसगीर में दाखिल करने की कोशिश की गई। पहले यह सिर्फ तस्वीर पर मुश्तमिल था। ऐसी वीडियोस दिखाने के लिए यूरोपीय कंपनीज ने पाकिस्तान और भारत में पोर्न सिनेमा की इजाजत चाही। इसके जवाब में सिर्फ इनकार ही नहीं किया गया, बल्कि पोर्नोग्राफी को बाकायदा एक जुर्म करार दिया गया। दूसरी तरफ यूरोपीय ममालिक में सेक्स वीडियोस की डिमांड कम होना शुरू हुई, क्योंकि एक ही तरह के सीन देखकर अवाम बोर होने लगे। दूसरा, बजाते खुद उनका माशरा इतना आजाद हो चुका था कि वीडियोस देखने की जरूरत रोज बरोज कम होने लगी। इसी सूरत हाल से परेशान होकर पोर्न इंडस्ट्री ने पोर्नोग्राफी के नए अंदाज पर काम करने के बारे में सोचा। यूं पोर्न कैटेगरी प्रोजेक्ट का आगाज हुआ। इस पोर्न कैटेगरी प्रोजेक्ट में सेक्स को कई अक़साम में तकसीम कर दिया गया। हर किस्म का अपना एक मुनफरिद अंदाज होता था। अगर आज हम किसी पोर्न वेबसाइट को ओपन करें तो हमारे सामने एक लिस्ट ओपन हो जाती है, जिसमें सेक्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज नजर आती हैं। जब कैटेगरी प्रोजेक्ट यूरोपीय अवाम के सामने लाया गया तो देखने वालों का इज़्दिहाम मच गया, क्योंकि इस दफा फहाशी के मनाजर रवायती तरीकों से हटकर रिकॉर्ड किए गए थे। यह प्रोजेक्ट पोर्न इंडस्ट्री के लिए आब हयात की सूरत अख्तियार कर गया, क्योंकि इसकी बदौलत हर शख्स की जिनसी नफ्सियात उभर कर सामने आई। मसलन एक शख्स धुआंधार जिनसी मनाजर के बजाय रिलैक्स पोर्न देखना पसंद करता है, तो इसके लिए अलग कैटेगरी मौजूद होगी। 1980 में वीसीआर टेक्नोलॉजी बरसगीर में आम हुई। अगरचे 70 की दहाई में कंप्यूटर भी पाकिस्तान में इक्का दुक्का जलवागर हो चुके थे, लेकिन आम लोग उनसे ना आशना थे। लिहाजा लोग पर्दा स्क्रीन से हटकर वीसीआर की तरफ मुतवज्जा हुए। इसी दौरान पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी पूरी शान से उभर कर सामने आई। यूरोपीय कंपनीज ने जब एशियाई लोगों का वीसीआर की तरफ रुझान देखा तो उनकी आंखों में
लालच की चमक पैदा हुई। यूं फैश फिल्में पाकिस्तान और भारत और दीगर एशियाई ममालिक में ब्लैक होकर बिकने लगी। 1998 में पोर्न इंडस्ट्री नामालूम हाथों में चली गई, यानी पोर्न इंडस्ट्री को यहूदियों ने खरीद लिया। पहले यह सिर्फ जिनसी कारोबार के तौर पर इस्तेमाल होती थी, लेकिन फिर इसे पूरी दुनिया को जिनसी दहशतगर्दी के लिए चुना गया। यहूदी निहायत महारत से शातराना चाल चलते हुए एक ऐसे मंसूबे पर काम कर रहे हैं जिन्हें वन वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, यानी एक ऐसी दुनिया जहां किसी खुदा का तस्वर ना हो। प्यारे दोस्तों, यहूदी पूरी दुनिया के लोगों को अपना गुलाम बनाकर उन पर हुकूमत करना चाहते हैं और यही इनका टारगेट है। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए पोर्नोग्राफी इनका सबसे पहला और अहम हथियार है, जिसमें यहूदियों को सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल हुई है। प्यारे दोस्तों, यहां एक बात वाज़ेह करते चलूं कि पोर्नोग्राफी सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नौजवानों को अपनी जहर से तबाह बर्बाद कर रही है, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यहूदियों की साजिश है। अगर आजकल के मुआशरे पर नजर दौड़ाएं तो पोर्नोग्राफी हर नौजवान की जेब में आ चुकी है। जब चाहें, जहां चाहें, हर एक बड़ी आसानी से इसको देख सकता है। आज हमारे मुआशरे में जो बेहयाई देखने को मिल रही है, जगह जगह मासूम बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, जिना के अड्डे सरेआम चल रहे हैं, ये सब के सब इसी पोर्नोग्राफी की पैदावार है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस जहर को रोकने में अपना किरदार अदा करें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद हैं तो हमसे अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, और मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज होने के रहमान। वस्सलाम।